آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ نیوز آپ کو اس حوالے سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے بھی آگاہ کرے گا۔ ہمارے نمائندے اعجاز آفریدی پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ذیشان سید نوشہرہ سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ نتائج کے حوالے سے آگاہ کر دیں۔ نیوز آپ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہا ہے۔ ثوابی میں گورنمنٹ ہائی اسکول یار حسین کے پولنگ اسٹیشن پر ANP امیدوار غلام حقانی 172 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ PTI کے بلند اقبال 17 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ ضلع باجوڑ کی تحصیل کونسل ناؤ گئی سے بھی پہلا نتیجہ آ گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 233 پر جماعت اسلامی کے لطیف جان کو 397 ووٹ ملے اور PTI کے خلیل الرحمان کو 131 ووٹ ملے، جس کے ساتھ وہ دوسری پوزیشن پر ہیں۔ ہری پور کے چڑوائی پولنگ اسٹیشن سے JUI کے میر اویس یوسف زئی 262 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ آزاد امیدوار خیام اسلام 146 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہی۔ مختلف جگہوں پر حالات کشیدہ ہونے کے باعث الیکشن معطل کرنا پڑا۔ مزید اس حوالے سے تفصیلات بھی جانیں گے اپنے نمائندگان سے۔ پشاور سے اعجاز آفریدی، سب سے پہلے بتائیے گا کہ ابھی کیا نتیجے سامنے آ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، میں اس وقت سید آفاق احمد شہید اسکول پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں، جہاں پر پولنگ بوتھ جو 1 تھا ان میں خود موجود تھا اور میرے سامنے وہ گنتی ہو رہی تھی، اور میں تھوڑا سا آپ کو اس کے حوالے سے تفصیلات بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پر 401 ووٹ یہاں پول ہوئے تھے اور میرے موجودگی تک 365 ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ ہوئی ہے اور 36 ووٹوں کی گنتی باقی ہے۔ لیکن ابھی میں بتاتا چلوں کہ ان 365 ووٹوں میں PTI کے رضوان باگش جو ہے وہ 150 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ JUI کے زبیر علی جن کا انتخابی نشان کتاب ہے اس نے 93 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے ارباب زرگ جو ہے یہ 39 ووٹوں کے ساتھ ہے، اور جو جماعتی اسلامی اور نون لیگ کے امیدواروں نے 5 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ANP کے شیر رحمان 54 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہاں پر اب بھی گنتی جاری ہے، 4 پولنگ بوتھ ہے یہاں پر۔ یہ ایک پولنگ بوتھ کا جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آ گیا ہے، جس میں خود موجود تھا اور گنتی جو ہے میں نے خود بھی کی، پروسیس کافی جو ہے وہ شفاف طریقے سے گنتی جاری تھی۔ جی ٹھیک ہے اعجاز، آپ ساتھ رہے گا۔ ذیشان سید ہمارے ساتھ نوشہرہ سے موجود ہیں، ان سے بھی وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ ذیشان، آپ بتائیے گا نوشہرہ میں اب تک کس طرح کا عمل جاری رہا پولنگ کا، اور اب تو ووٹوں کی گنتی بھی ہو رہی ہے، کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ جی عائشہ، بالکل اس وقت میں موجود ہوں وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کے جو آبائی پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ، چونکہ یہاں پہ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ مقررہ وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن پولنگ اسٹیشن کے اندر بڑی تعداد میں کارکن موجود تھے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو عمل ہے یہاں پہ تعینات ہے، انہوں نے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ اب تک وہ پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اس میں ٹائم لگے گا۔ تاہم پرویز خٹک کے حوالے سے اگر میں یہاں پہ بتا دوں تو پرویز خٹک اور لیاقت خٹک دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اندر آئے تھے، اور یہاں پہ پرویز خٹک نے ووٹ کاسٹ کیے۔ ووٹ میں یا وہ تذبذب کا شکار تھے یا کوئی اور وجوہات تھی، انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق خٹک کو بھی ووٹ کاسٹ کیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے بھتیجے احد خٹک کو بھی ووٹ کاسٹ کیا تھا، جس پر پولنگ عملے نے اس کے دوبارہ جو ہے ان کو بیلٹ پیپر دے دیا۔ انہوں نے ووٹ کاسٹ کر کے یہاں سے جا چکے۔ ابھی پولنگ کا عمل جو ہے وہ جو اندر کارکنان موجود تھے ان کے ووٹنگ جاری ہے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے پولنگ کا عمل مکمل ہوگا تو گنتی شروع کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب تو 6 سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی بھی جو لوگ اندر ہیں ان کی ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ذیشان سید نوشہرہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اعجاز آفریدی پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ تو خیبر پختون کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، ووٹوں کی گنتی ابھی بھی جاری ہے کافی حلقوں میں، اور نیوز آپ کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آگاہ کر رہا ہے۔ ثوابی میں گورنمنٹ ہائی اسکول یار حسین کے پولنگ اسٹیشن پر ANP امیدوار غلام حقانی 172 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ PTI کے بلند اقبال 17 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ ایک حلقے کا نتیجہ ہے جو کہ غیر حتمی غیر سرکاری ہے، نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع باجوڑ کی تحصیل کونسل ناؤ گئی سے بھی پہلا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 233 پر جماعت اسلامی کے لطیف جان کو 397 ووٹ ملے، PTI کے خلیل الرحمان کو 131 ووٹ ملے، جس کے ساتھ وہ دوسری پوزیشن پر ہیں۔
मुख्तलिफ हलकों से अभी भी नताइज आने का सिलसिला जारी है। पोलिंग स्टेशन से नताइज सामने आ रहे हैं। हम आप तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुंचा रहे हैं। हरीपुर के हवाले से आपको बताएं कि हरीपुर के चढ़वाई पोलिंग स्टेशन से भी नतीजा सामने आया है, लेकिन इससे पहले आप नवागई का नतीजा देख रहे हैं, जहां पर जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए। और सवाबी में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी गुलाम हक्कानी जो कि ANP के उम्मीदवार हैं 172 वोटों के साथ वो पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलंद इकबाल 17 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हरीपुर का आपको बताएं कि हरीपुर के जो चढ़वाई पोलिंग स्टेशन है वहां का भी नतीजा सामने आया है, जहां से JUIF के उम्मीदवार यहां से कामयाब हुए हैं। वजीर दिफा परवेज खटक ने बल्ले और तीर दोनों पर मोहर लगा दी। नौशहरा में वजीर दिफा परवेज खटक वोट कास्ट करते हुए तजब्जुब का शिकार हो गए। परवेज खटक ने गलती से PTI के उम्मीदवार इसहाक खटक और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आहत खटक को भी वोट डाल दिया। ताहम बाद में परवेज खटक को नया बैलेट पेपर दिया गया। परवेज खटक के बेटे PTI और भतीजा पीपल्स पार्टी का तहसील नौशहरा से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। आपको बता रहे हैं कि परवेज खटक वोट डालने आए तो वो तजब्जुब का शिकार हो गए और उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके मौके पर दोनों को वोट डाल दिया गया, लेकिन बाद में उनको नया बैलेट पेपर जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट डाला। आपको बताएं कि परवेज खटक के बेटे PTI और उनका भतीजा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और इसी तजब्जुब में परवेज खटक ने दोनों को ही वोट डाल दिया, यानी कि बल्ले और तीर के निशानों पर उन्होंने मोहर लगा दी और बाद में परवेज खटक को नया बैलेट पेपर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ को यानी कि अपने बेटे को वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात वोटों की गिनती जारी है। नियो न्यूज़ आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आगाह कर रहा है। सवाबी में गवर्नमेंट हाई स्कूल यार हुसैन के पोलिंग स्टेशन पर ANP उम्मीदवार गुलाम हक्कानी 172 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुलंद इकबाल 17 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जिला बाजोड़ की तहसील काउंसिल नावगई से भी पहला नतीजा आ गया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 233 का नतीजा आपको बताएं, जहां पर जमात इस्लामी के लतीफ़ जान को 397 वोट मिले हैं, वो पहले नंबर पर हैं, जबकि PTI के खलीलुर रहमान को 131 वोट मिले, जिसके साथ वो दूसरी पोजीशन पर हैं। आपको बता रहे हैं सवाबी का नतीजा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बुलंद खान दूसरे नंबर पर हैं, जबकि यहां से जमात इस्लामी के ANP के उम्मीदवार गुलाम हक्कानी 172 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। अगला नतीजा भी आपको बताएं, हरीपुर के चढ़वाई पोलिंग स्टेशन से JUIF के मीर अवैस यूसुफजई 262 वोट लेकर आ गए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ख़याम इस्लाम 146 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आपको गाजी का ये नतीजा बता रहे हैं, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार पीछे हैं, जबकि अगला नतीजा आपको बताएं ज़िला मर्दान का। यहाँ पर तहसील काटलिंग में चेयरमैन की नशिस्त पर मुकाबला है। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट मशवानी पर JUI के मुफ्ती हम्माद 152 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। PTI के जरशाद 100 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको काटलिंग का नतीजा बता रहे हैं। यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जरशाद खान, वो आगे हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो फायरिंग, मार धाड़, रॉकेट हमले के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इलेक्शन, वो कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी देखी गई, फायरिंग, तोड़ फोड़, हंगामे भी हुए, 2 अफराद जान से गए, 4 शदीद जख्मी भी हुए। मजीद इस हवाले से तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झगड़े, तोड़ फोड़, हंगामा आराई और फायरिंग। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। कर्क की तहसील तख्त नुसरती के इलाके फकीर खेल में पोलिंग स्टेशन में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दोनों PTI MNA के चचाजाद भाई हैं। मुलागोरी में 2 पार्टियों में झगड़ा, पुलिस का लाठी चार्ज, मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए रॉकेट लॉन्चर भी चला दिया। 18 पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग रोक दी गई।
तहसील लकी मरवत के हल्का मंचीवाला के पोलिंग स्टेशन में दो ग्रुपों में तसादुम, दोनों अफराद से शदीद फायरिंग की गई। लंडी कोतल के इलाके जरजान कली स्कूल बर्ग में पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग, पोलिंग का अमल रोक दिया गया। पिशावर के इलाके गुलबहार में शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी पर वोट डालने की इजाजत न मिलने पर आजाद उम्मीदवार के हामियों ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिया। पिशावर के इलाके शाह आलम में सियासी जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था। NC 43 में खवातीन पोलिंग स्टेशन में तसादुम के बाइस पोलिंग का अमल रोक दिया गया। बन्नू की तहसील बकाखेल के 5 पोलिंग स्टेशन पर नाखुशगवार वाकयात सामने आने पर पूरी तहसील में पोलिंग मुअत्तल। लंडी कोतल गुल अमीन वली खेल में सरकारी स्कूल में बनाए गए खवातीन पोलिंग स्टेशन में बदनजमी, तोड़ फोड़ भी की गई। अहम खबर आपको दें, कोहाट से वापसी पर वजीर साइंस शिबली फराज पर हमला हुआ है। दर्रा आदम खेल में शिबली फराज की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से शिबली फराज महफूज, गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, फायरिंग से शिबली फराज महफूज रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली बताएगा इस हमले के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई? अली, आप तक आवाज आ रही है? कोहाट से वापसी पर वजीर साइंस शिबली फराज पर हमला हुआ है। दर्रा आदम खेल में शिबली फराज की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से शिबली फराज महफूज रहे हैं, जबकि उनका गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शिबली फराज अपने आबाई इलाके कोहाट से पेशावर आ रहे थे कि वापसी पर दर्रा आदम के इलाके में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में बताया जा रहा है कि शिबली फराज महफूज रहे हैं, जबकि उनका गार्ड और ड्राइवर जख्मी हुए हैं। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तफ्तीश शुरू कर दी गई हैं, तहकीकात शुरू कर दी हैं। कोहाट से वापसी पर वफाकी वजीर साइंस शिबली फराज की गाड़ी पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। शिबली फराज महफूज रहे हैं इस वाक़े में, जबकि उनका गार्ड और ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज पर दर्रा आदम खेल में नामालूम अफराद ने हमला किया है, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली बताएगा इस हमले के हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है शिबली फराज कोहाट उनका आबाई इलाका है, वहाँ से वो पेशावर जा रहे थे कि दर्रा आदम खेल के मकाम पर उनकी गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिससे उनका गार्ड और ड्राइवर जख्मी हुए हैं। शिबली फराज ने राब्ते पर कहा है कि वो खुद बखैरियत हैं, उनको किसी किस्म का कोई फायर नहीं लगा और वो जख्मी नहीं है। ताहम उनका जो ड्राइवर है और उनके जो गार्ड है उनको पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है और पुलिस मौका पर पहुंच गई है और जो हमलावर है उनकी तलाश। तो हमलावरों के हवाले से अभी तक मालूमात सामने नहीं आई, कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है गाड़ी पर? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है ये अंधेरे में किया गया, एक घात लगा के किया गया हमला है, तो उसमें फौरी तौर पर इस बात का क्लू मिलना कि ये कौन है और किन्होंने ये हमला किया है, और वो अभी तो तक तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। आप देखें, अगर किसी ये तंजीम का कार्रवाई है, किसी कालादम तंजीम ने अगर ऐसा किया है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल करने पे ही इस बात का। ठीक है अली शेर, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात बता रहे थे। बात करेंगे OIC इजलास की। इस्लामी ताउन तंजीम के वजीर खारजा के इजलास में अफगानिस्तान की फौरी इमदाद के लिए इंतहाई अहम सिफारती पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक OIC ने अफगानिस्तान की इमदाद के लिए OIC ट्रस्ट बराए मालियाती ताउन की मंजूरी दे दी है। ट्रस्ट फंड की तजवीज़ पाकिस्तान ने वज़राए खारजा के दूसरे इजलास में पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ सरदार शिराज से। सरदार शिराज बताइएगा आज के इजलास के हवाले से, और जो ट्रस्ट कायम किया गया है इस हवाले से भी बताइएगा। जी, आज है OIC वज़राए खारजा का एक बहुत ही अहम इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात है उस पर गौर किया गया, और इस हवाले से जो है एक तजवीज़ पाकिस्तान की जानब से ये दी गई थी कि OIC का एक ऐसा जो है वो ट्रस्ट बनाया जाए जो अफगानिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात है वो दूर करने के लिए फौरी तौर पर जो वो हंगामी माली इमदाद करे। इस हवाले से हमारे ज़राए का ये कहना है कि ये तजवीज़ कबूल कर ली गई है। कबल अजीज जब इजलास से खिताब करते हुए जो सऊदी वज़ीर खारजा थे, उन्होंने 1 अरब रियाल को देने का भी ऐलान किया था। तो इस हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार शिराज आपका।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में खिताब करते हुए कहा है कि इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद न की गई तो बड़ा बहरान पैदा होने का खदशा है। अफगान मसले पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। अगर दुनिया ने फौरी इक़दाम ना किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा बहरान होगा। अगर फौरी इक़दाम ना हुए तो अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। अफरा तफरी अमरीका समेत किसी के मुफाद में नहीं है। इस वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम मदद के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 9/11 के बाद इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया। इसी दौर में रेडिकल इस्लाम की इस्तिलाह सामने आई। मुसलमानों के बारे में मनफी तासुर और प्रोपेगेंडा ख़त्म करने के लिए अमरीका और मगरिब में OIC अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। Islamophobia really started reaching a dangerous levels after 9/11, when terrorism and Islam were connected. When radical terms like radical Islam came, radical Islam, Islamic terrorism, they have to be delinked. It's very important for the OIC to play its part in explaining to the Western world. We make them understand. There should be a proper response to make them understand why Muslims react. Unfortunately, religion is used by elements in our society to divide people, spread hatred. The whole idea is to unite human beings under the teachings of our Prophet. 4 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान अक़वाम आलम का मेज़बान। अफगानिस्तान के मसले पर मुस्लिम उम्मा एक पेज पर आ गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में अफगानिस्तान की बहाली के लिए 6 निकाती हिकमत अमली भी पेश की। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर ऑफिशियल ग्रुप फोटो भी बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। हॉल में दाखिल हुए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़राए ख़ारजा को सीने पर हाथ रखते हुए सलाम भी किया और फिर पहली कतार में अपनी जगह पर जा खड़े हुए। पाकिस्तान में इस्लामी ममालिक का गैर मामूली इजलास 4 दिहाइयों के बाद हुआ है। अगर अवाम को उनका हक वापस ना दिया गया तो कराची से चित्राल तक एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क भर के शहरों और गलियों में कराची का मुकदमा लड़ेंगे। PTI हुकूमत ने वोट लेने और झूठे वादों के सिवा अवाम को कुछ ना दिया। कराची के शहरियों को, कराची के बासियों को जरूर अपना हक मिलेगा और कोई माई का लाल भी आपके हुकूक पर डाका नहीं डाल सकता। जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची की जमात के पुष्प पर, कराची के अवाम के पुष्प पर खड़ी है और अगर इस मार्च के नतीजे में उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी तो हम कराची से लेकर चतराल तक गलियों और कूचों में, शहरों और देहातों में शहर कराची वालों का मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। रियासत के वफादार हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वफादार नहीं। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है जब तक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी अवाम परेशान हाल रहेंगे। MQM 2019 तक पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में रही। मेरे अपने मुल्क में, मेरे अपने शहर में ये दवाओं का, अस्पतालों का निजाम मेरे हवाले कर दो और ये फैसला कर ले कि आज मरने से पहले हमें इस नहज तक पहुंचाने वालों को हम मार कर मरे। जालिम का वक्त निकाह जा चुका है, रब की मदद आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आखिरी सदा मंजूर। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक के करीब धमाके में जाँ बहक। PTI के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान और ड्राइवर शफीउल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान समेत दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। धमाके का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। FIR में इमारत के मालिक और जिम्मेदार अफराद को नामजद किया गया है।
इमारत गैर कानूनी तौर पर नाले पर कायम की गई थी। तामीरात के दौरान नाले की गैस के अखराज का बंदोबस्त न रखा गया, जिसके बाइस धमाका हुआ। जाय वकुआ से मलबा उठाने का काम जारी है। नाले से ATM और नकद रकम भी निकाली गई। पीपल्स पार्टी सरगोदा के जनरल सेक्रेटरी चौधरी वारिस नदीम वड़ाइच, एडवोकेट UC भाबरा से नून लीग के चेयरमैन चौधरी आसिफ रांझा और साबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद बातिन रांझा ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान और PTI के साथ इत्तेहाद चल रहा है, बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। लीडर को पता होता है कौन सा काम किससे और कब लेना है। मजीद जानते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि लीडर को पता होता है कौन सा काम किससे और कब लेना है।